Hello students, we have already started with applications of derivative. Today we are going to see its application, maxima and minima. Before we start with the application, we should know what do we mean by a maxima and minima. So let's start with the definitions of these two. So the definition of maxima of a function fx. A function fx is said to have a maxima at x equal to c if the value of the function at x equal to c is greater than any other value of fx in a delta neighborhood of c. That is, for a small delta greater than 0 and for x belonging to open interval c minus delta comma c plus delta, we have f of c is greater than f of x. Now the definition says that suppose you are given a function fx and at x equal to c, if the function is to have maxima, then in a delta neighborhood, we are going to consider a delta neighborhood. Delta is a small value, so एक neighborhood हम consider करते हैं of this value c. और ये जो डेल्टा नेबरहुड है इसके अंदर हमारे जितने भी fx के वैल्यू है, all the values of fx should be smaller than the value of f of c. Then we can say that at this point c you are going to have a maxima of the function fx. The value f of c is called a maximum value of f of x. Thus the function fx will have maxima at x equal to c if f of x is increasing in c minus delta less than x less than c and increasing in c less than x less than c plus delta. Now let's see what does this mean. Let us take a function. Suppose this is our function given to us. अब हम क्या करने वाले हैं? We are going to take a value c over here. Suppose this is our value of c, right? और हम इसका डेल्टा नेबरहुड कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज द डेल्टा नेबरहुड ऑफ दिस फंक्शन c. अब हमें देखना है कि हमारे c फंक्शन के लिए मैक्सिमा वैल्यू है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, ये c से छोटा वैल्यू लेंगे, दैट वैल्यू इज ऑन दिस साइड and we'll put it in our function fx. Then we are going to take some value on this side, we'll put it in the function fx. अब हमें क्या मिलना चाहिए, at this particular value we are going to get f of c, right? और यहाँ पे वैल्यू है वो है c माइनस डेल्टा, राइट? हियर वी आर हैविंग c प्लस डेल्टा वैल्यू. अब c माइनस डेल्टा वैल्यूज जो यहाँ पे वैल्यूज है उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इंक्रीजिंग. सी द वैल्यू इज इंक्रीजिंग. लेकिन अगर हम c प्लस डेल्टा के लिए वैल्यू देखेंगे द वैल्यू शुड बी डिक्रीजिंग. सो इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए और यहाँ से यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए. And then we can say at this particular value c, fx can have a maxima at the value c. This is the definition. Let's look at the definition of minima of a function fx. So a function fx is said to have a minima at x equal to c if the value of the function at x equal to c is less than any other value of fx in a delta neighborhood of c. तो डेल्टा नेबरहुड के अंदर आप कोई भी और एक वैल्यू ले लेते हो जो c से बड़ा छोटा कैसे भी हो और आप fx के अंदर पुट करते हो, राइट? एंड एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू यू सी दैट all the values are less than the values of f of c. f of c से सभी values कैसे होने चाहिए, less than. Then we can say f of x is going to have a minima at that particular point. That is, for a small delta greater than 0 and for x belonging to c minus delta comma c plus delta, this is the open interval, we should have f of c value is smaller than all f of x value. Then this c is a minima. The value of f of c is called a minimum value of f of x. तो अगर आप fx का वैल्यू निकालते हो at the point x equal to c, then that value is called as the minimum value.
And the next one is, thus the function f of x will have minima at x equal to c if f of x is decreasing at c minus delta less than x less than c and increasing in c less than x plus delta. अब देखते हैं, let us take a function again. So now we are taking a function like this. Suppose ये हमारा value है x equal to c, right? Here we are having the delta neighborhood. तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये है c माइनस डेल्टा वैल्यू. सो दीज आर c माइनस डेल्टा वैल्यू. हियर वी हैव c प्लस डेल्टा वैल्यू. इफ यू लुक एट इन द कार्टेशियन सिस्टम ये ऐसा होगा, ये वैल्यू बड़े हैं, ये वैल्यू छोटे हैं. अब अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हो और आप fx के अंदर पुट करते हो, राइट, एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ओवर हियर, सो दैट वैल्यू इज नथिंग बट f of c वैल्यू. You also find the value on this side of the interval, that is c से बड़े वाले वैल्यूज हैं. Then what do you get? You should get f of x is decreasing. तो यहाँ पे ये decreasing होना चाहिए on this side and it should be increasing on this side. ये side से ये increase होना चाहिए. Then we can say that x equal to c point will be a minima point for f of x. Let's look at some more things about maxima and minima. Now, if we are having f dash of c is equal to 0, then at x equal to c, the function is neither increasing nor decreasing. Such a point on the curve is called as the turning point or stationary point of the function. Any point at which the tangent to the graph is horizontal is a turning point. Now, what does this say? प्रीवियसली जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें मिला था एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर एक्स के जगह पे अगर आप कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको मिलता है एफ डैश ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन 0, तो आपको मिलता है द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट द पॉइंट सी. उसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए मिला था हमें एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0. अगर आप सी पॉइंट के लिए इसको कंसिडर करोगे तो आपको मिलता है एफ डैश ऑफ सी शुड बी लेस देन 0. देन वी गेट डिक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ हमें मिलता है इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ हमें मिला डिक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, कभी तो हो सकता है ग्रेटर देन 0 मिलता है, लेस देन 0 मिलता है, कभी इक्वल टू 0 अगर मिला, then at that time the function is neither increasing nor it is decreasing. तो वो टाइम हमारा जो फंक्शन है वो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है at this particular point. Then this point x equal to c is called as the turning point. ये turning point है हमारा, or you can also call it as a stationary point. Now suppose you take a graph. अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, right, let us draw a graph like this. अगर आपको एक टेंजेंट मिलता है लाइक दिस विच इज पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस, अगर ऐसा अगर पॉइंट आपको मिलता है तो हमें पता है कि ये जो हमारा पॉइंट मिला, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, see on this side the function is decreasing, this side the function is increasing, but you don't know what is happening at this particular point. Then this particular point either you will get a maximum value or you will get a minimum value, and that is why this point is called as a turning point or a stationary point. I hope you have understood this part. Now we can locate the turning point by looking at the points at which derivative is equal to 0, that is dy by dx is equal to 0 या फिर f dash of x is equal to 0. अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है और अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको पता चलता है इफ द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आप कंसिडर करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा जहां पे हमारा टर्निंग पॉइंट है. At these points, if the function has maxima or minima, then these are also called as the extreme values. जैसे अगर ये पॉइंट हमें मिला तो ये पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, एज आई टोल्ड यू. लेकिन अगर आपका इस तरह से ग्राफ होगा and you have a tangent like this, then this point will be a minima. Here the function is increasing, here the function is decreasing. So you get a maxima point, here you get a minima point. तो आपको मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट अगर मिल रहे हैं देन दीज ऑल्सो आर कॉल्ड एज द एक्सट्रीम वैल्यूज. इसको एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं. नाउ फ्यू नोट्स.
We'll come to the diagram in a minute. The maxima and the minima of a function are not necessarily the highest and the least values of the function in the whole domain. अभी just now मैंने आपको बताया था कि अगर if you look at this particular point A point के लिए हमें point यहाँ मिला है, right? So you get a increasing function, you get a decreasing function. This side you get a increasing function, this side you get a decreasing function. तो ये जो point A है वो maxima point हो गया. उसी तरह से अगर हम ये पॉइंट बी देखें, पॉइंट बी में यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट हैंड साइड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नथिंग बट अ मिनिमा पॉइंट. अब अगर हम ये इंटरवल देखते हैं ए से लेके बी तक इंटरवल हम देखते हैं, तो हमें एक मैक्सिमा पॉइंट मिला, एक मिनिमा पॉइंट मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरे इंटरवल में एक ही मैक्सिमा एक ही मिनिमा वैल्यू मिले. आपको ज्यादा भी वैल्यूज मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है आप छोटा इंटरवल कंसिडर करो, आप यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ पे इंटरवल कंसिडर करो, देन द मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू विल चेंज. एंड हियर इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इंटरवल, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे द वैल्यू विल चेंज. सो you can say that the functions, the maxima and minima of the functions are not necessarily the highest and the least value of the whole domain. पूरे डोमेन के लिए ये हमारे मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमारे छोटे से इंटरवल के लिए मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू है. Actually these are the greatest and the least value of the function in a small interval. Hence the maxima or the minima defined above are also known as local or relative maxima and the local or relative minima of the function fx. तो ये जो हमारे अभी हमने डिफाइन किए हैं दे आर नथिंग बट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्योंकि छोटे इंटरवल के लिए हमने कंसिडर किए हैं. Now there are two ways of finding out the maxima and minima. The first one is the first derivative test. Let us see how the first derivative test work. A function fx has a maxima at x equal to c if the first is f dash of c should be equal to 0. Second is f dash of c minus h is greater than 0, that is fx is increasing for all x less than c value. And you should get f dash of c plus h is less than 0, that is we should get f of x is decreasing for the values of x greater than c. अभी हमने देखा था ना, right? So if you are taking this way, मैक्सिमा के लिए देख रहे हैं तो ये साइड में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये साइड में ये डिक्रीजिंग होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वेयर दिस स्मॉल h इज टेकन एज अ स्मॉल वैल्यू, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. उसी तरह से a function fx has a minima at x equal to c if we have f dash of c is equal to 0, then you should have f dash of c minus h is less than 0, that is fx is decreasing for the functions x less than c, and f dash of c plus h should be greater than 0, that is you should get fx is increasing for the values of x greater than c. Just now we have seen this one also. अगर हमारा ग्राफ इस तरह से है, this is our particular value c, तो यहाँ पे अगर देखेंगे the function should be decreasing on the left hand side और right hand side में ये होना चाहिए increasing, then it is a minima. You can say the function will have a minima at this point. ये हो गया हमारा first derivative test. But mostly when we'll solve the example, we are not going to use first derivative test. We'll be using the second derivative test. So let's see what is the second derivative test. Before that, here is a note. If f dash of c is equal to 0 and you get f dash of c minus h is greater than 0, f dash of c plus h is also greater than 0, or you get f dash of c minus h is less than 0, f dash of c plus h is also less than 0, then this f of c is neither a maxima nor minima. In such case we say x is equal to c is called as a point of inflation. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप छोटा इंटरवल लेते हो, सपोज द पॉइंट c is taken over here, if you are taking a point c in the interval,
सपोज सी पॉइंट इज ओवर हियर, और आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आपको क्या मिलता है, या तो दोनों के दोनों इंक्रीजिंग मिल रहे हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग मिल रहा है, राइट हैंड साइड में भी इंक्रीजिंग मिल रहा है, देन दिस पॉइंट सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नॉट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, या तो ये फिर ये दोनों भी डिक्रीजिंग मिल जाए, then you say this point C is not a point where you will get a maxima minima. Such point is called as point of inflation. Let's look at the second derivative test. A function f of x has a maxima at x equal to c if f dash of c is equal to 0 and f double dash of c is less than 0. मैक्सिमा होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, यू शुड गेट एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज यू शुड गेट एफ डबल डैश ऑफ सी इज लेस देन 0. ये देखो मैक्सिमा के लिए ये लेस देन 0 होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उल्टा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में अलग होता है. यहाँ क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको नेगेटिव मिला तो आपको मिलेगा मैक्सिमा वैल्यू, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला तो आपको मिलेगा मिनिमा ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ this note is very important. The note is if f double dash of c is equal to 0, या तो ग्रेटर देन मिला है, लेस देन मिलेगा, ये दोनों में से कोई एक मिलेगा, लेकिन अगर आपको कभी 0 मिला then the second derivative test will fail and you have to go and find the maxima minima using the first derivative test. So अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है देन विल गो फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सो नॉर्मली विल बी यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द सम्स. द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द फंक्शन fx. इन सम ऑफ द एग्जाम्पल fx विल बी ऑलरेडी गिवन टू यू. काफी एग्जाम्पल्स में आपको fx दिया रहेगा, अगर वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे तो आपको fx फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द function fx. Second step is find the f dash of x and f double dash of x. तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे. Step 3 is consider first order derivative is 0, that is f dash of x is equal to 0 and find the root of the equation f dash of x is equal to 0. तो आपने जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 डाला आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आप उसके रूट्स निकालोगे, यू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. से यू गेट x इक्वल टू c इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. एक रूट मिला आपको, x इज इक्वल टू c. इफ यू गेट दिस यू गो टू नेक्स्ट स्टेप. द स्टेप इज यू पुट x इज इक्वल टू c इन f डबल डैश ऑफ x. ये जो f डबल डैश ऑफ x निकाला था इसके अंदर हम x इज इक्वल टू c पुट करेंगे और चेक करेंगे. If f double dash of c is greater than 0, then f has a minima at x is equal to c. So, अगर आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिला तो आपको मिलेगा f has a minima. And to find the minimum value of f, अगर आपको f का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो आपको x is equal to c यहाँ पे मिला है वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे f of x के अंदर. So you put x is equal to c in f of x. नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे थे, इफ वी गेट f डबल डैश ऑफ c इज लेस देन 0, राइट, देन वी कैन से f हैज अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू c. अगर आपको मिला f डैश ऑफ c नेगेटिव देन यू कैन से f हैज अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू c. एंड टू फाइंड द मिनिमम, सॉरी दिस शुड बी maximum value. To find the maximum value of f, put x is equal to c in f of x. तो f of x के अंदर आप वापस से substitute करोगे. Now we'll apply all these steps in solving the examples. So starting with the examples, we are already on exercise number 2.4. हमने थोड़े examples solve किए थे increasing decreasing function के लिए. So we'll continue with the exercise. So we are starting with sum number 9. The problem is find the maximum and minimum of the following functions. उसमें से हम फर्स्ट सब क्वेश्चन देख रहे हैं.
that is y is equal to 5x cube plus 2x square minus 3. So let's start with the solution. We are given that y is equal to, हम y को fx consider करते हैं. Let us take y is equal to fx. So we say fx is equal to 5x cube plus 2x square minus 3x. तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, गेटिंग द वैल्यू ऑफ fx, हमें fx मिल गया. अब सेकेंड स्टेप हमारा था फाइंडिंग f डैश ऑफ x एंड f डबल डैश ऑफ x. So we can say f dash of x is equal to 15x square plus 4x minus 3, first order derivative. Second order derivative f dash of x is equal to 30x plus 4. ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट. थर्ड स्टेप हमारा था consider f dash of x is equal to 0. So for the extreme values f dash of x is equal to 0. So we'll put f dash of x is equal to 0. f dash का वैल्यू है 15x square plus 4x minus 3. the value is equal to 0. अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. So just a simple quadratic equation. So therefore 15x square plus 9x minus 5x minus 3 is equal to 0. टेकिंग कॉमन 3x बचा हमारे पास 5x plus 3 minus 1 taken from common from the next two terms. This is 5x plus 3 is equal to 0. तो हमें मिला 5x plus 3 into 3x minus 1 is equal to 0. तो हमें x के दो वैल्यूज मिले, x is equal to minus 3 upon 5 और you get x is equal to 1 upon 3. अब x के जो दो वैल्यूज मिले, प्रीवियसली मैंने सिर्फ x इक्वल टू c लिखा था, अब हमें x इज इक्वल टू c दो मिले हैं. सो दोनों x के लिए हम कंडीशन नंबर 4 चेक करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक x इज इक्वल टू माइनस 3/4. हम f डबल डैश के अंदर इसको पुट करेंगे. f डबल डैश ऑफ x हमारा है 30x plus 4. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3/5. So that will give us f double dash of minus 3/5 is equal to 30 into minus 3/5 plus 4. That will give us minus 14 which is less than 0. तो हमें ये मिला नेगेटिव, right? So we have got f double dash of minus 3/5 is less than 0. Less than 0 मतलब हमें मिला है f of x attains its maximum at x equal to minus 3/5. अब हमें maximum value भी चाहिए है. So for the maximum value is, we'll take the value of x is equal to minus 3 upon 5 और ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे f of x के अंदर. तो f of minus 3/5 is equal to 5 into minus 3/5 cube plus 2 into minus 3/5 square minus 3 into minus 3/5. So that is minus 27/25 plus 18/25 plus 9/5 which is 36/5. अब हम सेकेंड वैल्यू ऑफ x के लिए सेम थिंग यूज करेंगे. सो फॉर x इज इक्वल टू 1/3. f डबल डैश ऑफ x हमारा है 30x plus 4. अब x का वैल्यू हम पुट करेंगे 1/3. सो f of 1/3 इज इक्वल टू 30 into 1/3 plus 4 which will give us 14 which is greater than 0. हमें मिला पॉजिटिव वैल्यू. सो इफ इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू वी कैन से f of x attains मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/3. और मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए है, सो फॉर मिनिमम वैल्यू हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे fx के अंदर. सो ये हो जाएगा f of 1/3 इज इक्वल टू 5 into 1/3 क्यूब प्लस 2 into 1/3 स्क्वायर माइनस 3 into 1/3. So that value is equal to 5/27 plus 2/9 minus 1 which is minus 16/27. तो हमें मिल गया मैक्सिमम वैल्यू, हमें मिल गया मिनिमम वैल्यू, वही हमें पूछा था मैक्सिमम एंड मिनिमम. सो देयरफॉर द फंक्शन fx हैज मैक्सिमम वैल्यू 36/25 at x is equal to minus 3/5 and minimum value minus 16/27 at x is equal to 1/3. I hope you have understood. See, we are using the same steps. हम वही steps use कर रहे हैं जो अभी हमने लिखे थे. पहले तो f of x, उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया. स्टेप नंबर 3 वी हैव कंसिडर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. x के वैल्यूज फाइंड आउट किए. उसके बाद हम गए स्टेप नंबर 4 के सब्स्टिट्यूशंस में. सो x के जो वैल्यूज मिले थे हमें, हमने उसको f डैश ऑफ x के अंदर सब्स्टिट्यूट किया.
जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया विथ चेकआउट हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला या नेगेटिव वैल्यू मिला। नेगेटिव वैल्यू मिला तो हमें मिला मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव वैल्यू मिला तो हमें मिला मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी x का वैल्यू है, राइट, हियर द वैल्यू वाज -3/5, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया हमारे f ऑफ x के अंदर, तो मिला मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू के लिए भी हमने वही किया, हमने x का दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया f ऑफ x के अंदर, एंड वी हैव गॉट द मिनिमम वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको एक वैल्यू मैक्सिमा मिला, एक वैल्यू मिनिमा मिला। जरूरी नहीं है कि हर सम में आपको एक वैल्यू मैक्सिमा और एक वैल्यू मिनिमा मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों भी मिनिमम मिल जाए आपको एक ही इंटरवल के अंदर, और यू कैन गेट 2 मिनिमम वैल्यूज और 2 मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Again we are looking at group number 9 question. Find the maximum and the minimum of the following function. We are looking at the fifth sub question. F of x is equal to x into log of x. अब fx तो ऑलरेडी हमारे पास है, सो गिवन fx is equal to x into log of x. सेकेंड स्टेप पे हम जा रहे हैं, तो हम फाइंड कर रहे हैं f dash of x. u इंटू वी अप्लाई करेंगे, सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो हमें मिला f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस log of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x मिला हमें 1. सो वी गेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस log of x. ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ वी वांट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो f डबल डैश ऑफ x, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x. सो वी हैव गॉट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो. अब हमें चाहिए है एक्सट्रीम वैल्यू, सो फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. f डैश ऑफ x हमारे पास है, हम इसको पुट करते हैं 0, तो हमें मिलता है 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 0. दैट इज इफ वी गेट log ऑफ x इज इक्वल टू -1. अब -1 को हम लिख सकते हैं log ऑफ e, सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू माइनस log ऑफ e. अब लॉ ऑफ लॉगरिथम्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाता है log ऑफ e रेज टू -1. रिमेंबर द लॉ, आपको याद होगा, दिस इज log ऑफ a रेज टू m इज इक्वल टू m टाइम्स log ऑफ a. सो वी आर जस्ट यूजिंग दिस रूल ओवर हियर. अब दैट इज यू कैन से log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू -1. अब लॉगरिथम दोनों जगह पे है, वी कैंसिल इट, वी गेट दैट इज वी गेट x इज इक्वल टू e रेज टू -1. e रेज टू -1 इज 1/e. तो ये हमें मिला एक ही वैल्यू ऑफ x. अब x का वैल्यू मिला है, तो हम f डबल डैश ऑफ x के अंदर पुट करेंगे टू सी वेदर दिस वैल्यू ऑफ x इज मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट. सो दैट इज if we get x is equal to 1/3, let's put the value. So when x is equal to 1/3, f double dash of x is 1/x. So we get f double dash of 1/e is equal to 1/1/e, that is e, which is greater than 0. हमें मिला सिर्फ e, तो ये मिला हमें पॉजिटिव वैल्यू. e एक नंबर है, so we get a positive number over here. So we have got f double dash of 1/e is greater than 0. So we say f is minimum at x equal to 1/e. अब हमें चाहिए है minimum value of fx. So minimum value of f is f of 1/e is equal to 1/e into log of 1/e. अब हम लॉगरिथम्स के जितने भी रूल्स है अप्लाई करते हैं, तो ये होता है 1/e टाइम्स log of e raised to -1. That is 1/e into -1 log of e. Log of e का वैल्यू हमें मालूम है, we'll apply the rule value over here, so that is -1/e. log of e का वैल्यू 1 पुट कर दिया, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला f of 1/e is equal to -1/e, and that is done. Let's take another question. Now we are starting with the word problems. Now here we are looking at sum number 10. Divide the number 30 into 2 parts such that their product is maximum. अब the question is given as we want to divide this number 30. ये 30 के हमें 2 पार्ट्स करने हैं. ऐसे पार्ट्स करने हैं कि इनका अगर हमने प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम.
सो इन द सोल्यूशन लेट अस कंसिडर वन ऑफ द पार्ट इज x. अगर एक x पार्ट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 30 माइनस एक्स हो जाएगा. सो वी गेट द टू पार्ट्स x एंड 30 माइनस एक्स. अब हमें चाहिए है इसका प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. सो वी कैन से लेट अस कंसिडर f ऑफ x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस एक्स. ये दोनों का प्रोडक्ट इज अवर fx. अब हमें fx क्या चाहिए है, मैक्सिमम चाहिए है. तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विथ अवर प्रोसीजर. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. फिर हम पुट करेंगे f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकालेंगे. सेम प्रोसीजर विल अप्लाई. सो fx के लिए हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर. सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 30 माइनस 2x. f डबल डैश ऑफ x हमें मिलेगा -2. नाउ फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ f डैश ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0. So therefore that is 30 minus 2x is equal to 0, giving us 2. कॉमन लिया हमने, 15 minus x is equal to 0, or else you can directly take 30 to that side. So that will give us x is equal to 15. तो x का वैल्यू हमें मिल गया. अब x का वैल्यू हम f डबल डैश के अंदर वैल्यू पुट करके देख रहे हैं. सो इफ x इज इक्वल टू 15, f डबल डैश ऑफ x हमारा है -2. अब x की जगह पे हम डाल देते हैं 15. सो दैट इज f डबल डैश ऑफ 15 इज ऑल्सो इक्वल टू -2. नेगेटिव मिला, सो दैट इज लेस देन 0. सो वी कैन से दैट f ऑफ x अटेन्स मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15. तो x का वैल्यू तो हमें मिल गया. तो हमें एक पार्ट मिल गया है x इज इक्वल टू 15. तो सेकेंड पार्ट भी हमें मिल जाएगा 30 माइनस 15. सो 30 माइनस 15 इज 15. So therefore two parts of 30 are 15 and 15 and the sum is over. I hope you have understood. अब जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप fx फाइंड आउट कर लो. fx फाइंड आउट करने के बाद बाकी का पूरा प्रोसीजर देखोगे, द प्रोसीजर विल रिमेन द सेम. सो ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx. fx मिल गया तो हमारा काम हो गया. Let's take another question. We are looking at sum number 12 of exercise number 2.4. A wire of length 36 meters is bent in the form of rectangle. Find its dimensions if the area of the rectangle is maximum. अब हमें क्या दिया है, we are given a wire. वायर का लेंथ कितना है, 36 मीटर्स है. अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमें वायर दिया था, ये वायर को हम बेंड करेंगे और उसका बनाएंगे एक रेक्टेंगल. सेम वायर, हाँ, ये जो 36 मीटर वाला वायर है उसी को हमने बेंड किया और ये रेक्टेंगल बना दिया. नाउ वी वांट टू फाइंड द डायमेंशंस. डायमेंशंस मतलब हमें चाहिए है इसका लेंथ और हमें चाहिए है इसका ब्रेथ. सो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B ओवर हियर, सो दैट द रेक्टेंगल हैज अ मैक्सिमम एरिया. इसका जो एरिया रहेगा वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट x बी द लेंथ एंड y बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो हमने लेंथ को x कंसिडर किया, ब्रेथ को हमने y कंसिडर किया. अब ये जो हमारी वायर थी, वायर को ही बेंड करके हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है. मतलब अगर हम इसको ओपन करें ये रेक्टेंगल को, तो ये वापस से वायर बन जाएगा. सो वॉट एवर इज द लेंथ ओवर हियर इज द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36. दैट इज 2y is equal to 36 minus 2x and that can be written as 2y is equal to 2 हम कॉमन ले रहे हैं 18 minus x giving us y is equal to 18 minus x. हम इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये हमारा fx नहीं है, दिस इज नॉट अवर fx. fx क्या है, जिसके बारे में हमें कंडीशन दिया है उसको हम कंसिडर करेंगे हमारा fx. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में दिया है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन fx. सो नाउ वी कैन से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इंटू वाई. y का वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाता है एक x इंटू 18 माइनस एक्स. सो लेट अस कंसिडर fx इज इक्वल टू
ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें मिला हमारा fx। अब fx मिलने के बाद सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2। अब हमें चाहिए है एक्सट्रीम वैल्यू, सो विल टेक f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। Now when does this happen? So f dash of x मतलब है 18 minus 2x is equal to 0. So therefore you get 2x is equal to 18 giving us x is equal to 9. So we can say f double dash of 9. So इसके अंदर हम पुट करके देख रहे हैं, हमें मिला -2 which is less than 0. तो ये मिला हमें नेगेटिव. So we get f double dash of 9 is less than 0. लेस देन है तो हमें मिल गया मैक्सिमम. So therefore area is maximum when x is equal to 9. अगर आप x का वैल्यू पुट कर देते हो इक्वेशन नंबर 1 में तो आपको मिलता है y is also equal to 9. So the area is maximum when x is equal to 9 and y is equal to 9. So therefore the dimensions of the rectangle are 9 centimeter cross 9 centimeter. अब यहाँ पे मीटर्स होना चाहिए, जस्ट मेक दिस एज मीटर्स नॉट सेंटीमीटर, इट शुड बी मीटर. सो इट इज 9 मीटर क्रॉस 9 मीटर क्योंकि ये मीटर में दिया है. नाउ इफ यू लुक एट दिस 9 क्रॉस 9, लेंथ भी 9 है, ब्रेड भी 9 है, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ स्क्वायर. सो अगर कोई भी रेक्टेंगल का एरिया आपको मैक्सिमम मिलता है देन दैट रेक्टेंगल हैज टू बी अ स्क्वायर, वो हमेशा स्क्वायर ही रहेगा. लेट्स टेक another example. We are looking at 13th sub question. A ball is thrown in air. Its height at any time t is given by h is equal to 3 plus 14t minus 5t square. Find the maximum height it can reach. So let's take down whatever is given. तो हमें यहाँ पे h दिया हुआ है. Directly you are given the function. So given height h at any time t is h is equal to 3 plus 14t minus 5t square. अब हमें हाइट को ही मैक्सिमाइज करना है. सो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. dh by dt is equal to 14 minus 10t. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2h divided by dt square is equal to minus 10. Now for the extreme values or maximum height you should get फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dh by dt is equal to 0. We'll put the value, that is if you have 14 minus 10t is equal to 0, that is if you get t is equal to 14 by 10 which is equal to 7 by 5. तो t का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में. सो व्हेन t is equal to 7/5 d2h divided by dt square is equal to minus 10 which is less than 0. Less than 0 तो it is maximum. So therefore the height will be maximum when t is equal to 7/5. लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं चाहिए. We want to find out what is the maximum height. तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम t का वैल्यू हमारे h के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो मैक्सिमम हाइट इज h is equal to 3 plus 14 into 7/5 minus 5 into 7/5 square. So that will give us 3 plus 98 divided by 5 minus 245 divided by 25. You can also do the cancellation over here. So that is going to give us 320 divided by 5. नाउ हियर यही वाले सम में प्रीवियस सम में मीटर्स दिया था तो हमने मीटर्स में आंसर लिखा था. यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है. नो यूनिट इज गिवन टू अस, सो विल कॉल इट एज hence the maximum height the ball can reach is 12.8 units. Since we don't know the units, we'll write it as units. I hope you have understood this question. So students, we'll stop over here for the day. Remaining questions of this exercise we'll be seeing in the next class. So let's stop over here for the day. Have a nice day and thank you.